Hello, 12th class. We are to start with the chapter 3, Deep Water by William O. Douglas. And in this lesson, it's a very good story or a very twisting story about a child, that is William Douglas himself. So let's read the introduction and summary. I will be giving you the summary and the whole lesson I will explain you. Introduction. Like in this story, Douglas talks about his fear of water and how he finally overcomes it with strong will, power, courage, hard work, and firm determination. Once he took courage, the fear vanished. Like whenever we think like we have to do this thing or that thing, the fear of that thing vanishes within us. So that shows most of our fears are baseless. There is no base to our fear. Fear is only just a word, but we can overcome it very easily. So fear creates dangers where there is none. The writer's experiences further confirms a proverbial truth: where there is a will, there is a way. So like this only we'll start with the lessons. First of all, I will give you about tell you about characters and places you like in this chapter. First of all, William Douglas, he's a narrator of the story as well as a writer. Then YMCA pool, he visited YMCA pool for his swimming classes. A swimming pool runs by Young Men's Christian Association Society. Then Yakima. Yakima is a US city located about 60 miles southeast of Mount Rainier in Washington. Next comes the summary. These are the places they have used. Let's start with the summary. It's like the story Deep Water tells us how the writer overcome his fear of water and learned swimming with sheer determination and willpower. He had developed a terror of water since childhood. अपने बचपन से ही उनको पानी से डर हो गया था. Because in the starting, let's read, when he was 3 or 4 years old, the writer had gone to California with his father. वो अपने father के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गए. One day on beach, the waves knocked the child down and swept over him. His father and he tried the जैसे सर्फ होता है ना, सर्फिंग के लिए जाते हैं, जो एक जैसे काइंड ऑफ आपने देखा होगा गोवा वगैरह बीचेस पे जाओ तो एक सर्फिंग के लिए एक वो होता है काइंड ऑफ स्केटिंग बोर्ड सा होता है, लाइक काइंड ऑफ दैट. तो उस पर हम जब वो अपने फादर के साथ जाते हैं तो जब वो कर रहे होते हैं सर्फिंग तो पानी की एक लहर आती है और उनको डुबो देती है. द फादर रिमेन द स्टिल बिकॉज ही वॉज 3 or 4 years old. ही वॉज अ चाइल्ड. He was drowned in the water, but his father saved him. So one of the day, on the beach, the waves knocked the child down and swept over him. The child was terrified, but the father, who knew there was no harm, laughed. बच्चा बहुत डर गया. लाइक विलियम डगलस पानी में गिरने के बाद, सर्फिंग के बाद वो बहुत डर गए, बट उनके फादर हंसने लग गए उन पर जोर जोर, क्योंकि ही नोज कि इट इज़ नॉट ऑफ हार्म, कुछ भी नहीं होगा, बस ज़रा सा डूबा है वो. द एक्सपीरियंस ब्रेड अ परमानेंट फियर ऑफ वाटर इन द चाइल्ड सबकॉन्शियस माइंड. बट उस बच्चे के अंदर परमानेंटली डर बैठ गया. स्टिल अनदर इंसिडेंट मोर सीरियस इंक्रीज हिज टेरर. अब और ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से उसका टेरर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया. द राइटर वॉज ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग इन द YMCA स्विमिंग पूल इन याकीमा. वो याकीमा के स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए सीखने जाते हैं. जैसे अभी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक YMCA पूल जाते हैं सीखने के लिए. सो वन डे वाइल ही वॉज सिटिंग फॉर अदर बॉयज़ अ बिग बॉय. अभी वो डे बाय डे 1 by 1 करके स्टेप बाय स्टेप स्विमिंग सीख ही रहे थे कि एक दिन एक वो पानी के किनारे, पूल के किनारे बैठा हुआ था डगलस, और एक बड़ा सा लड़का आता है. सडनली प्लेड अ डेंजरस प्रैंक एंड पुश्ड हिम इनटू द वाटर. उसने उसको पूल के अंदर धक्का दे दिया. द राइटर वॉज टेरिबली फ्राइटेंड और डगलस बहुत ज़्यादा डर गए. ही वेंट डाउन 9 feet पानी गहरे में, मतलब जो डेड एंड था वहाँ पर उसने उसको फेंका, और 9 feet डीप था वो पूरा. सो दैट ही बिकेम वेरी फ्राइटेंड अबाउट इट. लाइक उसे बहुत डरने लगा. When he reached the bottom, जब वो ज़मीन पे पहुंचा तो उसने सोचा था कि मैं नीचे से पैर मार के ऊपर उठ जाऊंगा. He jumped upward with all his strength. He came up but very slowly. बट वो जितनी ज़ोर से पैर मारा था उतनी धीरे धीरे आ रहा था, बिकॉज पानी में प्रेशर पड़ रहा था उसकी बॉडी पे. सो ही ट्राइड टू कैच होल्ड ऑफ समथिंग. वो ऊपर हाथ उठा उठा के देख रहा था कि कुछ आएगा, रस्सी आएगी या कुछ मेरे हाथ में आएगा, बट ओनली ग्रास्प्ड वाटर. सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ में पानी आ रहा था. ही वेंट डाउन अगेन. फिर वो नीचे गया. उनके लंग्स में पेन होना स्टार्ट हुआ, मतलब पानी भर गया. पानी सर ऐसे लगा भारी हो गया. एंड ही ग्रीव डिजी मीन्स बेहोशी टाइप्स. ही फेल्ट पैरालाइज विद फियर. वो डर के मारे पैरालाइज हो गया. ऑल दिस हिज लिम्स वर पैरालाइज. लिम्स पैरालाइज हो गए. ओनली द मूवमेंट ऑफ हिज हार्ट टोल्ड
him that he was alive. सिर्फ उनके दिल की धड़कन उन्हें बता रही थी कि वो जिंदा हैं. Again he tried to jump up. उन्होंने फिर कोशिश करी ऊपर आने की, but this time his limbs wouldn't move at all. But उनके limbs ने उनका साथ छोड़ दिया because water भर गया था उनके limbs में पूरा. He looked for ropes, ladders and water wings, but all in vain. तो उन्होंने हाथ मारने की कोशिश करी कि ऊपर कोई रस्सी, कोई ladder कुछ आएगा, but हाथ में सिर्फ क्या आ रहा था, पानी. Then he went down again the third time. This time all effort and fear ceased. अब वो तीसरी बार फिर पानी की जगह उन्होंने फिर सोचा कि मैं छलांग मार के ऊपर आऊँगा, बट अब वो पूरा हार चुके थे. ही वॉज मूविंग टूवर्ड्स पीसफुल डेथ. द राइटर वॉज इन पीस. उन्हें लग रहा था कि अब मेरा डेड एंड आ गया, मैं मर जाऊंगा. वेन ही केम टू कॉन्शियसनेस ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन द साइड ऑफ द पूल विद अदर बॉयज नियर बाय. अब जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वो पूल की साइड में ऊपर और लड़के खड़े हुए हैं उनके आसपास और वो वहाँ पे लेटे हुए हैं. द टेरर दैट ही हैड एक्सपीरियंस इन द पूल नेवर लेफ्ट हिम. बट जो डर उन्होंने वहाँ पे पूल में एक्सपीरियंस करा वो कभी उनकी ज़िंदगी से नहीं गया. इट वॉज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ डेथ. It haunted him for years and years to come. It spoiled many of his expeditions of canoeing, swimming, fishing. इसी डर के मारे वो कभी canoeing, swimming, fishing कुछ नहीं करना चाहते थे. It spoiled his pleasures in Mains Lake, Lewis Hampshire, Deschutes, Columbia and Bumping Lake, etc. But the writer was determined to conquer his terror. But अब एक दिन विलियम डगलस ने बिल्कुल डट लिया, मतलब अपना पक्का कर लिया कि मैं अब सीखूंगा, मैं अपने डर को भगाऊंगा. He took help of a swimming instructor to learn swimming. उन्होंने अपने लिए एक पर्सनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर किया. द इंस्ट्रक्टर taught him various actions necessary in swimming part by part. डे बाय डे, पार्ट बाय पार्ट उस स्विमर ने उनको, उस इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाया. He put his face under water and exhaled and inhaled. पहले उन्हें एक्सेल इनहेल करना सिखाया, किस तरह पानी के अंदर एक्सेल करना है, इनहेल करना है, पानी के बाहर कैसे एक्सेल इनहेल करना है. ही प्रैक्टिस इट फॉर सेवरल वीक्स. और हफ्ते तक, मतलब एक एक वीक के अंदर उन्होंने एक एक एक्टिविटी से सिखाई. ही हैड टू किक विद हिज लेग अ फ्यू वीक्स ऑन द साइड ऑफ द पील. पहले किक, फिर किकिंग सिखाई. एट लास्ट ही कंबाइंड ऑल दीज एक्शंस. और फिर जो जो उन्होंने एक्शंस उसको सिखाए थे वीक बाय वीक, उन्होंने सब एक्शंस को कंबाइन किया और उनको फाइनली स्विमिंग सिखा दी इंस्ट्रक्टर ने. ही लर्न स्विमिंग बट द टेरर कॉन्टिन्यू. स्विमिंग तो सीख ली बट डर वो दोबारा वापस आ गया कि मैं डूब जाऊंगा. So deep goes our childhood experiences, so fearful is the fear of fear. Whenever he was in water, the terror returned. जब भी वो पानी में अकेले जाते उनको डर आ जाता कि मैं डूब जाऊंगा. Henceforward, the writer tried to terrorize terror itself. अब उन्होंने बोला कि डर को मैं डराऊंगा. अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं डर को डराऊंगा. He tried to face a new challenge. When terror came, he confronted it by asking it sarcastically as to what it can really do to him. और जैसे उनको डर लगा तो उन्होंने बोला, क्या बिगाड़ लोगे मेरा. उन्होंने डर को बातें करी. यू कैन नॉट स्पॉइल एनीथिंग, मेरा कुछ नहीं कर सकते हो तुम. ही प्लांज इनटू द वाटर एज इफ टू डिफाई द फियर. और वो छलांग मारी पानी के अंदर ताकि जैसे वो डर को डरा रहे हैं कि देखो मैं स्विमिंग कर सकता हूँ. वंस ही टुक करेज द टेरर वैंक्विश्ड. और जैसे उन्होंने अपने करेज दिखाया, अपनी साहस दिखाई, उनका डर पूरा भाग गया. ही फेस द चैलेंज डेलिबरेटली इन वेरियस प्लेसेस लाइक द वार्म लेक. उन्होंने फिर बहुत सारे लेक्स में ट्राई करा. ही कॉन्कर्ड इट एट लास्ट. फाइनली उन्होंने वो अपने डर के ऊपर जीत पा ली. सो इन दिस लेसन इट्स अ जिस्ट लाइक विलियम ऑफ डगलस हैज़ डिजायर टू स्विमिंग सिंस चाइल्डहुड. उनका बचपन से मन था स्विमिंग सीखने का. 3 और 4 ईयर्स की एज में अपने फादर के साथ गए कैलिफोर्निया बीच पे, डूब गए. उसके बाद से उन्हें डर आ गया पानी का. फिर उसके बाद 10 और 11 एज में उन्होंने YMCA पूल में सीखना शुरू करा तो एक बिग बुली बॉय ने उनको गिरा दिया जिसकी वजह से वो नहीं, फिर उनको डर आ गया. फिर उन्होंने काफ़ी साल तक ये सब छोड़ दिया. देन सेकेंड टाइम उसके बाद जो उनका पूरा दे रखा डिस्क्रिप्शन आप रीड कर लीजिएगा. एंड आफ्टर दैट फाइनली व्हेन ही finally wanted to like do this, it deprived him joys of canoeing, boating, swimming and fishing. Had an instructor hire किया. पीस बाय पीस उसने सिखाया. फिर बहुत सारी लेक्स में वो अकेले गए. टाइनी वेस्टिजेस ऑफ फियर आए उनके पास बट स्टिल ही मैनेज्ड और जीत लिया. करेज ऊपर आ गया उनका. वार्म लेक में फाइनली वो अकेले गए और फाइनली उन्होंने रियलाइज़ किया दैट इन डेथ देयर इज़ पीस. मरने में शांति है. एंड देयर इज़ टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ. और डर किस में है? सिर्फ मरने के डर में डर है, अदरवाइज हमारे आसपास कोई डर नहीं है. एनीबडी डजंट वांट्स टू डाई. नो वन इज़ देयर हु वांटेड टू डाई. सबको मरने के नाम से डर लगता है, राइट. सो दिस इज़ वॉट ही वांटेड कि सिर्फ टेरर किस में है? हमारे मरने के डर में हमें डेथ टेरर है, अदरवाइज डेथ में कोई डर नहीं है. डेथ इज़ वेरी पीसफुल. So with this, it's like a brief explanation of this lesson is ended up. I want you all to read the lesson very carefully, and if you have any doubt, you can ask me. Thank you.